हाँ जी, रिपीट हो। Okay. So, uh, let me share my screen. So the idea is you can ignore this date probably. 6 September. Uh, the last session did not happen because nobody joined, right? So I could have continued, but I just wanted to have people as well, right? Um, with the users. Hmm. Okay, so we'll continue on the. We'll take forward after the discussion that we had last time. So last time हमने discuss किया था the importance of stats in real life. Why is it needed? We took an example of some people going to date, and then one of them was a statistician. कैसे decision लेते हैं and so on and so forth. उसके बाद we went on to discuss its application in real life. कुछ pointers थे that we had starting from how can we use stats in our daily life? How is it currently used in daily life as well as in the corporate world, right? The data science algorithms, all of which are designed, they utilize stats. So that is one thing, one important thing, right? After that, we discussed charts, graphs, and tables, right? We discussed histograms as well. We discussed bar graph as well, which is not mentioned here. That's covered in the last session. And then we had an overview of the center and the spread of the data. So हाँ जी। इतना डिटेल में हमने नहीं किया अभी सेंटर एंड स्प्रेड. सो विल कवर इट इन टुडेज डिस्कशन. ओके, आज की डिस्कशन का फोकल पॉइंट यही होगा. हाउ टू मेजर द सेंटर, द स्प्रेड, what are the measures which are currently used in the industry and from a stats perspective as well. ये क्या होते हैं, right? So let's start ओके। today's discussion. So let's start with the sample data, right? यहाँ पे हमारे पास let's consider a data of a classroom, right? And for your information, this is all dummy data, right, that we are working with. So in that classroom, there are some students whose weights are recorded. So there we use pounds, right? So that's why you can see 140, 145. Right. So the total students is 92, and amongst them for the males, this is the data. So student 1, 140, 145, 160, and so on. And for females, this is the data, right? So this is the data for all the 92 students. Right? Now, there's one interesting picture over here which says there's a student Smith who's saying how are we measuring it and so on. What kind of scale are you using? So the teacher who is trying to explain, right? He's saying that's fine. I mean, we don't care about that because there's just sample data. Right? So yeah, so there's just sample data. We don't have to go to the accuracy of this data and how it was measured, which is kind of another aspect of stats and determining the certainty with which we are kind of measuring the data, right? So we'll go ahead with this sample data and we'll be using this data only to discuss further. Now, that is a lot, right? Having 92 data points and uh, stating them one by one is a lot. So we use some ways to represent the data. So let's summarize the data somehow. Okay. How can we summarize the ओके। data? One is that I can make buckets of the weights, right? For example, 90 से 100 kilo, let's say 90 to 100 kgs, and then 70 to 80 kgs, 80 to 90 kgs, 60 to 70 kgs, something like that, right? So the same example, the same thing that they have done here, they have kind of bucketized the data, and they are using buckets starting from 87.5. Okay, 87.5 to 102 pound, and then so on. One thing you will observe is the size, the range would be the same for this class. Okay, so if you यस go यस। here, right, the range would be 5. Again, here it would be, yeah, so this is 87, so it's 15. Same here, and so on. Right. So for every class, the range is the same. This is one thing. Uh, it may also be of use once we don't create uniform buckets, right?
So just be watchful of that as well. Now for this class, the midpoint is the middle point basically, right? So 87.5 and 102.5, the middle point is 95. And for this class, the frequency, what is the frequency? Meaning how many students weights are falling into this bucket. 87.5 से 102.4 तक कितने स्टूडेंट्स के वेट है, सो ये फ्रीक्वेंसी है. नाउ टोटल फ्रीक्वेंसी हमें पता है 92 है. इफ वी डिवाइड 2 by 92 we get this number 0.02. so this is what we call relative frequency. ठीक है. So that is how we summarize the data, right? Now once the summarization is done, let's see why we need it. Okay. I mean, we kind of covered why we need it, but once we have the summarized data, what insights can we get from it? Okay. Now we have this data. So Mehul, you are there, right? ये समराइजेशन है हमारे पास. यहाँ से आप किस तरीके का इंसाइट निकाल सकते हो? इसमें तो मामा हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाल लिया. तो इसमें मामा क्या करना चाहिए? तो Okay. So you are thinking from a perspective कि हमने क्या क्या निकाला है. But I am saying insight हम क्या क्या निकाल सकते हैं, हम क्या क्या कह सकते हैं regarding the weights of those students. मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता कौन सी क्लास है, क्या है क्या नहीं है. मुझे सिर्फ ये पता है ये डेटा है 92 बच्चों का XYZ क्लास में है, लेट्स से. ठीक है. ओके. अब मुझे ये डेटा दिया हुआ है. अब लेट्स से अगर कोई मुझसे पूछता है कि गेस करो ये किस क्लास का है, किस स्टैंडर्ड का है, राइट? सो मैं क्या करूंगा, मुझे जब ये दिया हुआ है, लेट मी टेक दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा यहाँ पे है 147 से 162, राइट? सो मिडिल पॉइंट 155, which means कि most of the students have a median weight of 155. हाँ जी. And based on this figure कि median weight क्या है क्लास का, राइट? I can say कि ये किस क्लास के बच्चे हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्लास के बच्चों का लेट्स से ऑन एन एवरेज weight would be kind of 15 kg, and then 10th class के बच्चे का on an average weight can also be 45 kg, let's say, right? तो इस डेटा से मुझे कुछ नहीं पता था, I didn't know the class, but इस डेटा से I can arrive at a very good guess कि फर्स्ट क्लास के बच्चे का या 10th क्लास के बच्चों का. Got it. Right? So that's why summary is important first. Now यहाँ पे जो लिखा है वो सब वही है which I have explained. Right? ठीक है. Now यहाँ पे हम रिपोर्टिंग बायस इग्नोर कर रहे हैं. रिपोर्टिंग बायस वही होता है कि स्टूडेंट का वेट 80 है, उसने 75 बता दिया. इस तरीके के बायस को रिपोर्टिंग बायस कहते हैं. ठीक है. लेट्स मूव अहेड. सेम डेटा को लेट्स फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी टेबल ओनली लेट्स शो इट इन अ ग्राफ. ओके. तो ग्राफ में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, मोरओवर हिस्टोग्राम में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, सो हमारे रेंजेस वर स्टार्टिंग फ्रॉम 87.5. दिस इज पॉइंट 87.5. or this is the 5 pound bucket that we had, sorry 15 pound bucket, right? Then similarly we have all the other buckets, 15 pound के सारे buckets. 15 pounds now and then the height of this bar which it would represent your frequency. So पहले bucket की frequency 2 थी, and then ये सब थी, and then यहाँ पे the frequency was 27. So if you see the highest bar frequency is 27. अब summarization उस टेबल से हमें जो इंसाइट मिला वो हमें यहाँ से और भी क्विकली मिल जाता. कैसे? इफ आई सी दिस चार्ट, मुझे पता है वेट इन पाउंड्स है, यहाँ पे वेट इन पाउंड्स है एक्स एक्सिस पे 100 पाउंड 150 पाउंड, एंड वाई एक्सिस पे मेरी फ्रीक्वेंसी है. सो बिकॉज ये हिस्टोग्राम है तो वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ही होगी. सो बहुत ही जल्दी व्हाट आई कुड सी वाज कि यहाँ का मीडियन वेट इज अराउंड 150 kg, समथिंग अराउंड 155 एक्स है, बिकॉज सबसे ऊंचा बार 155 का है. तो यहां से मैं और क्विकली वो इंसाइट निकाल सकता हूं. ठीक है. सो दैट इज हाउ विजुअल रिप्रेजेंटेशन इज बेटर देन अ टेबल फर्स्ट. ओके. अब आते हैं हम सेंटर ऑफ द डेटा पे. सो ये सिर्फ हमने अभी एग्जांपल लिया था फॉर अ सैंपल डेटा, राइट? नाउ लेट्स डिस्कस अ कांसेप्ट फॉर सेंटर ऑफ डेटा व्हिच इज मीन.
The first is mean basically. Okay. For this, let's take an example. Let's say we have numbers x1, x2 till xn. When I say n can be any number. It's not bound to be between any limit. It can be 1000 as well, 2000 as well. Right? Depends on the points that we are measuring. Right? We read them as x1, x2, x3, and so on till xn. Right? Now, let's say that yeah. So this array, it just represents the observation number, the observation that you are making, and the data value. That is about the standard notations that we follow. After this, now let's take another example. Okay, let's park that example of for 92 students, weights of those 92 students, and let's take an example of 5 people, right? And in this example, we are looking at the hours of television that they are watching in a week. Okay, the first observation, it says 5 hours, 7 hours, 3 hours, 38 hours, and then 7 hours. Okay, now from this we say that x1 5 hai, x2 is 7, x3 is 3, and so on and so forth. Now, what we want to tell from this data is what is the center of the data. Center of the data, as the word says, right? It is a central point which you can get from the data. There are certain measures for it, different measures for it, which represent different centers. Okay, let's look at them. The first one is mean. Okay, mean is also called average, but in statistical terms we call it mean. Okay, both are the same actually. So the calculation of mean is very simple. We just sum all the data points and divide it by the count of the points. Okay, so we denote it by x bar, right? And x bar is equal to sum of the data upon n, which is x1, x2, x1 plus x2 plus dot dot till xn upon n. We are using a dot dot because this is a generic formula for mean. Okay, there can be n number of points, and when we say n would be in the count of those data points. So ये n data points है, so we divided by n. Okay. तो हमारे example में क्या होगा? That watching television वाला number of hours, right? So 5 plus 7 plus 3 plus 38 plus 7 divided by 5, which is 60 by 5 and 12 hours. So this is how we get the first center of the data. So mean हमारे पास 12 hours है. So we can say that amongst the people that I had interviewed, the amount of television that they watch, they have a mean watching time of 12 hours on an average. हर बंदा 12 घंटे टीवी देख रहा है. Now here there is one question for you. Okay. If I say 12 घंटे on an average एक बंदा टीवी देख रहा है, so is this the right way of saying of the exact representation of the data? एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, वो एवरेज निकला है ना सबका. हाँ, राइट. अब ये बंदा देखो, ये जो 3 घंटे वाला है, अब इसको मैं बोलूं ये उसमें था जिसका मैंने डेटा लिया. अब डेटा सब लेने के बाद मैंने बोला कि 12 घंटे सब ऑन एन एवरेज टीवी देख रहे हैं. बोलेगा यार मैं तो 3 ही घंटे देख रहा हूँ. तो ये ऑब्जर्वेशन आपकी गलत है. वो गलत नहीं है. वो 12 घंटे क्यों आ रहा है? क्योंकि एक बंदा था जो 38 घंटे देख रहा था, राइट? ये इसको पुल कर रहा है एवरेज 12 की तरफ. ठीक है. ये 5 घंटे वाला, 7 घंटे वाला, 7 घंटे वाले को शायद इतनी प्रॉब्लम ना हो, उसको फर्क भी ना पड़े. बट 5 घंटे और 3 घंटे वाला बोलेगा यार मैं तो इतना ही देख रहा हूँ, तो इतना कैसे आ गया? ठीक है. तो उसके लिए आपको डेटा पे वापस जाना पड़ेगा. बट जो हम आगे सेंटर ऑफ द डेटा देखेंगे उसमें वापस जाने की जरूरत नहीं है डेटा पे. लेट्स सी हाउ. अगेन सेम सेंटर ऑफ डेटा मीन का यूज थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में. इसके लिए हम यूज करते हैं दिस सिंबल विच इज सिग्मा, राइट? स्टैटिस्टिकल सिंबल है एंड सिग्मा denotes a summation. Okay, the summation of this is how we write it, summation of xi, where I varies from 1 to n. This would mean when we open this, right, it would mean x1 plus x2 plus until xn. So this is पूरे sum को instead of writing again and again हम सिर्फ sigma denote कर देते हैं. ठीक है.
तो इसको अगर 10 टाइम्स आप रिपीट करोगे तो यू विल नेवर फॉरगेट इट इज व्हाट दिस गाय इज सेइंग दिस इज द ही इज द स्टैटिस्टिशियन तो शायद ये सही बोल रहा होगा तो यू कैन ट्राई इट एज वेल ठीक है ये नोटेशन किस चीज का होता है दिस वी हैव कवर्ड इन दिस स्लाइड नाउ वापस से हम मीन पे आ जाते हैं मीन वाज इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला मीन वाज समेशन ऑफ ऑल द डेटा पॉइंट्स अपॉन एन समेशन को हमने एक नोटेशन दे दी सिग्मा sigma of xi where I varies from 1 to n okay or we can also write it as xi divided by n okay so this is something that I will cover later maybe right but अगर कोई constant term होता है we can take it inside sigma ठीक है so this is the formula for x bar which is your mean we also call it mu sometimes this symbol mu right but we'll cover it later okay so this is the statistical representation for your mean this one or this one now let's come on to the another center of data measure which is the median okay this is kind of like the midpoint of the data right let's say jab we are traveling on a road and there is a median strip in the middle of the road so think of it as the median wahi median we don't care कि हो सकता है रोड के एक साइड पे ज्यादा डांबर लगा हो या ज्यादा पेंटिंग हुई हो या कुछ भी हुआ हो एक साइड पे कम हुआ हो बट वी डोंट केयर व्हाट वी जस्ट केयर अबाउट इज मिडिल पॉइंट होना चाहिए डेटा या फिर रोड का राइट लेट्स सी हाउ वी कैलकुलेट इट सबसे पहले हम डेटा को वी अरेंज इट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सो दिस वाज द डेटा दैट वी हैड द सेकंड एग्जांपल लेट्स अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर starting from the lowest one 3 5 7 7 and 38 okay this is the highest one so the median would be simply the middle value now these are 5 observations so middle value is the third observation which is 7 right now for the cases there may be a question that we may have cases where the number of observations is not odd it can be something like 4 observations और 2 observations उस केस में हम मीडियन कैसे निकालते हैं उस केस में हम क्या करते हैं we find there would be 2 middle values let's say for the example where we had just 4 data points let's say in this case we pick the 2 middle points right in this case it's 5 and 7 and we take an average of it so the median of this data would be 5 plus 7 by 2 which is 6 right so this is how we calculate the median for any data it can be a odd number data or an even number data up till this point any question Mehul no clear है clear hai okay ha now why do we have more than one measure of the center right zaruri hai ye question because they are different mean was 12 and median is 7 now थोड़ा सा विजुअलाइज करो इस चीज को वी हैव 5 डेटा पॉइंट्स उसमें हमें पता चल गया मिडिल डेटा पॉइंट क्या है एंड वी हैव द एवरेज एज वेल व्हिच सेज 12 आवर्स सो मेरा मीडियन कहेगा कि 7 आवर्स ऑन एन एवरेज 7 आवर्स not on an average but the middle point is 7 that is one insight that I get from the median but अगर मैं एवरेज देखूंगा तो what I get is that the middle point is 12 दोनों में बहुत डिफरेंस है राइट 7 घंटे और 12 घंटे में डिफरेंस है सो that is the whole reason why we want to measure the center in 2 different ways or let's say 3 different ways third we may not be covering today but there is another as well which is more right now अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है right? One is पहले मीडियन देखते हैं मीडियन of the data is not sensitive to outliers okay. now what do we mean when we say outliers so जो 5 में से एक बंदा 38 घंटे टीवी देख रहा है वो आउटलायर है ठीक है बाकी बंदे 7 घंटे या 7 से कम घंटे देख रहे हैं वो एक अकेला बंदा है जो 38 घंटे देख रहा है वो दुनिया से अलग है ऐसे समझो सो ही इज एन आउटलायर फॉर एग्जांपल जैसे
नॉर्मली क्लास में भी होता है। तो लेट्स से हमने कोई 7 फीट का बंदा देख लिया, ठीक है, तो वो क्या है 7 फीट का बंदा, वो हर जगह अलग अलग दिखेगा, राइट। तो उसको हम बोल सकते हैं वो एक आउटलायर है इन टर्म्स ऑफ हाइट। तो वही आउटलायर होते हैं, राइट। या फिर उनको हम एक्सट्रीम वैल्यूज भी कह सकते हैं, विच आर नॉट टिपिकल इन द रेस्ट ऑफ द डेटा, राइट। मोरोवर नाउ लेट्स से जो हमारे पास 5 बंदों का डेटा था, लेट्स से 1 पर्सन वॉचेस 200 आवर्स पर वीक, राइट, देन इट बिकम्स 3577 एंड 200। तो ये 200 क्लियरली एक आउटलायर है, राइट। अब अगर लेट्स से ये पांचवा बंदा 38 की जगह 200 घंटे देखता है, तो देखते हैं मीडियन पे क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है मीडियन में। मीडियन अनचेंज रहेगा, वो चेंज नहीं मीडियन, होगा। हाँ मीडियन चेंज नहीं होगा बिकॉज असेंडिंग में ऑर्डर किया और सिर्फ ये वैल्यू चेंज होगी। बट मीन का क्या होगा, मीन चेंज हो जाएगा। मीन चेंज हो जाएगा, क्यों? बिकॉज उसमें ये वैल्यू भी कंसीडर होगी, तो हाँ जी। राइट समेशन में। सो मीडियन, सो पहला पॉइंट यही है कि मीडियन आउटलायर्स पे डिपेंड नहीं करता या उससे सेंसिटिव नहीं है। आउटलायर होने को 2000 भी होता तो मीडियन फिर भी यही रहता, बट मीन और ज्यादा हो जाता, ठीक है। तो एक बहुत थोड़ा सा फनी है ये, राइट, इन अ वे। सो हाइट वाला एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा था, राइट। सो फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा है जो बहुत ही लंबा है, they can't distort the mean, they can't distort the median, but they would distort the mean, as we notice in this, right? So ये कोई एक छोटा बंदा लंबे बंदे को कह रहा है कि यू आर डिस्टॉर्टिंग द मीन हाइट मैन। तो एक इंस्टेंस है 1984 में, in the University of Virginia, they announced that the Department of Rhetoric and Communications graduates mean starting salary was 55,000. The outlier, the salary of NBA Center Ralph Sampson, did not represent the earning power of ABA in speech from U of V. Right, the median salary was not published. So थोड़ा सा टेक्निकल है ये, इसमें थोड़ा सा इंटरनल वर्किंग में जाना पड़ेगा। बट द थिंग इज कि just looking at the mean is not enough to determine the center of the data or to take some policy decision. We need to look at the median as well. Moving on. Now, for the center of the data, we have covered mean, we have covered median. Now, let's see why do we want to measure the spread of the data. Spread of the data would mean, spread meaning failav, the horizons it may be covering. If I say less spread, it has less spread, it would mean बहुत ही पास पास है वैल्यू, एंड देन मोर स्प्रेड वुड मीन बहुत ही दूर दूर वैल्यू है, राइट। सो थिंक ऑफ इट एज, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जिस जिस स्कूल में आपने स्कूलिंग करी होगी, उस स्कूल में जिसमें स्कूलिंग करी होगी, जो बच्चे वहां पे आते थे वो मोस्टली लोकलाइट्स होते थे, राइट। जैसे जहां से आपने स्कूलिंग करी में होगी, वो बच्चे लोकलाइट्स होंगे और उसी एरिया से मोस्टली बिलोंग करते हैं। बट नाउ दैट यू आर इन ग्रेजुएशन, तो उस यूनिवर्सिटी में जो बच्चे आते हैं वो शायद ऑल ओवर द यूपी या फिर ऑल ओवर द इंडिया से आते हैं, राइट। तो यही है स्प्रेड ऑफ द डेटा का मतलब, यही है। जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे, अगर उनके होम टाउन का स्प्रेड में देखो तो होम टाउन का स्प्रेड बहुत कम है। बट अगर जो कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका अगर मैं स्प्रेड देखूं होम टाउन का, तो बहुत ज्यादा है, पूरे इंडिया में कवर कर रहे हैं। तो यही चीज है। अब देखते हैं ये डेटा में कैसे है। नाउ लेट्स से हमारे पास 5 बंदे हैं एंड इनके साइजेस इन टर्म्स ऑफ वेट ऐसे हैं, राइट। सो इसमें लाइट है, हैवी है, राइट। ये तो हम इंडिविजुअल को देख के बता सकते हैं, बट इस डेटा पे क्या हम कह सकते हैं, सबसे सबसे फैट ये है, फिर ये स्लिम है, ये मीडियम है, ब्ला ब्ला। बट जब हम इन सबका डेटा लेंगे तो लेट से वो ऐसा कुछ दिखता है, हिस्टोग्राम बना के कुछ ऐसा दिखता है कि कुछ बच्चों का वेट यहाँ पे है, कुछ का यहाँ पे है, so on so forth. नाउ इसको हम स्टैटिस्टिकल मेजर्स में कैसे मेजर करते हैं? तो पहला मेजर देखते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, राइट। इंटर क्वार्टाइल, सो पहले पिक करते हैं रेंज को,
What does range mean? Range, we covered it in the last session. Range is your maximum value minus minimum value. मिनिमम वैल्यू. Right. Now, quartile क्या होता है? Quartile is quarter. It's derived from quarter. Quarter means 1/4 of something. Right. So, let's say मेरे पास पूरा डेटा है, मैंने उसको असेंडिंग में सॉर्ट कर दिया, देन मैं उसको 4 इक्वल हिस्सों में बांटूंगा. ठीक है. So let's say first 25, next 25, next 25, next 25. Right? Think of it as 100 डेटा पॉइंट है, तो ये 25, ये शुरू के 25 हैं, ये उसके बाद के, उसके बाद के, उसके बाद. नाउ यहाँ पे जो पॉइंट है इसको मैं बोलूंगा 25th परसेंटाइल, एंड यहाँ पे जो पॉइंट है ये है 75th परसेंटाइल. इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स मैं इसको Q1 एंड Q3 भी बोल देता हूँ. सो इसको मैं Q1 बोल दूंगा एंड इसको मैं Q3 बोल दूंगा. ठीक है. नाउ Q1 एंड Q3 के बीच में जितना है, ये सारा जितना है, ये मेरा इंटर क्वार्टाइल रेंज हो जाएगा. ठीक है. इसको मैं IQR बोलता हूँ. सो वाइडली यूज है स्टैटिस्टिक्स में. IQR से हम आउटलायर क्लीनिंग भी करते हैं फॉर द पीपल हु आर इनटू फोरकास्टिंग एंड ऑल. IQR का डिटेक्टिंग आउटलायर एंड करेक्टिंग आउटलायर यूजिंग IQR इज वेरी प्रेवलेंट. ठीक है. लेट्स कम बैक टू हाउ वी कैलकुलेट IQR. बहुत ही सिंपल है. Q1 और Q3 आइडेंटिफाई करेंगे, 25th एंड 75th परसेंटाइल, एंड देन देख लेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Q1 एंड Q3. ठीक है. मानो. हाँ. मैं ये कहता है इंटर क्वार्टर यही तो हो गया ना, फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर, मतलब बीच का जो क्वार्टर होगा उन दोनों के बीच का जो होगा वही तो होगा ना. नहीं, इसको ऐसे समझो. जो भी डेटा है, लेट्स से 100 लोगों का डेटा है, राइट, हाँ जी. उसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. ओके. ठीक है. यहाँ पे क्या है, मिनिमम वैल्यू आएगी, हाँ जी. और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको मैं कह रहा हूँ Q1. ओके. मतलब यहाँ से 25वें बंदे की वैल्यू है Q1. 1/4. हाँ, 1/4. मतलब इसके नीचे जो Q1 वैल्यू वाला बंदा है, मान लो ये वजन ही है, तो यहाँ पे लेट्स से 40 किलो है. ओके. ठीक है. एंड यहाँ पे 70 किलो है, एंड मैक्सिमम वजन है 100 किलो. ओके. 100 बंदों का वजन है. ठीक है. यहाँ पे 25 कर देते हैं इसको परसेंट की सिटी. 25 और ये 75 है. ठीक है. और यहाँ पे जो है, इस बंदे का, यहाँ पे जो बंदा है उसका वजन है 50 किलो. इमेजिन अ सिनेरियो जिसमें ऐसे लोग हैं जिनका वजन पहले का 1 किलो है, दूसरे का 2 किलो है, एंड सो ऑन. जब उनको असेंडिंग में अरेंज करूंगा तो ऐसे ऐसे आ जाएगा. यहाँ पे 1 किलो वाला होगा, यहाँ पे 25 किलो वाला, यहाँ पे 50 किलो वाला, 25 किलो वाला Q3 होगा, एंड देन सो ऑन. ठीक है. सो यहाँ पे IQR क्या होगा? IQR वुड बी 75 minus 25. ठीक है. मेक सेंस मेहुल? हाँ जी. ठीक है. तो IQR मेरा यहाँ पे होगा 75 minus 25, which is 50. नाउ IQR कैलकुलेट हमने यहाँ पे तो सिंपल सिनेरियो लिया था इसलिए कैलकुलेट हो गया, बट यू कैन डू इट इन एक्सेल. एक्सेल में परसेंटाइल का एक फॉर्मूला होता है. तो कोई भी डेटा है उसका परसेंटाइल, लेट्स से 10 परसेंटाइल, 12 परसेंटाइल क्या है वो हम इजीली मेजर कर सकते हैं. परसेंटाइल मेजर कर सकते हैं तो Q3 और Q1 आराम से मेजर हो सकते हैं, एंड IQR भी आराम से मेजर हो सकता है. क्लियर? यस, क्लियर. ठीक है. नाउ अगेन उस सब का ही फिर से इन्होंने बताया यहाँ पे. पहले तो न्यूमेरिकल ऑर्डर में लगाना है, इज द स्टेप 1, राइट. देन उसके बाद हमें इक्वल हाई एंड लो ग्रुप्स में डिवाइड करना है. मीडियन पे, ये तो मीडियन हो जाएगा यहाँ पे जो है 50. ठीक है. हाँ, इसके बाद मीडियन जो है वो हाई और लो ग्रुप में डिवाइड करता है. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनको क्वार्टर्स में डिवाइड करेंगे. मीडियन को भी आधा कर देंगे. ठीक है. तो वही Q1 और Q3 आइडेंटिफाई करने की चीज है.
और IQR हमारा क्या होगा, IQR would be Q3 minus Q1. और अगर स्पेसिफिक जो हमारा पर्टिकुलर एग्जांपल था फॉर द वेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट, तो वहां पे अगर हम देखें तो IQR इज 156 minus 125, दैट इज 31 पाउंड्स. तो वहां पे इंटर क्वार्टाइल रेंज इज 31 पाउंड्स. नाउ लेट मी टेक अ स्टेप बैक. यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करता हूँ IQR का सिग्निफिकेंस क्या है. सो हो सकता है इन योर द क्वार्टर, द टॉप क्वार्टर जो कि Q3 से Q4 तक है, एंड इन योर फर्स्ट क्वार्टर जो कि 0 से Q1 तक है, Q0 से Q1 तक है बेसिकली, राइट. इट्स अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे आउटलायर्स हो. द लेसर पॉसिबिलिटी इज कि Q1 से Q3 तक आउटलायर्स हो. तो इन अ वे ये आपको डेटा का अंदाजा भी देता है कि जो 50 पाउंड आपका IQR आया है, सॉरी 31 पाउंड जो आपका IQR आया है, it is kind of actually representing a good amount of spread in the data. ठीक है. अगर मैं कोई ऐसी क्लास उठा लेता जिसमें बच्चों के वजन बहुत ज्यादा वेरी करते हैं, लेट्स से जो एग्जांपल हमने लिया था, राइट, 1 किलो 2 किलो एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो उस एग्जांपल में मेरा IQR 50 आ रहा था, राइट, 75 minus 25, जो कि बहुत ज्यादा है. तो अगर आप इन दोनों IQRs को कंपेयर करो, देन डेफिनेटली यू विल गेट एन आइडिया कि जो मैंने एग्जांपल लिया वो एरेटिक एग्जांपल है. इतना ज्यादा IQR नहीं होना चाहिए. ये एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ द क्लास. ठीक है. बट एनीवेज, लेट्स मूव ऑन टू स्टैंडर्ड डेविएशन. सो स्प्रेड ऑफ द डेटा में डिस्कस कर रहे हैं, एंड सेकंड थिंग इज स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वी वांट टू सी कि हमने मीन तो वी हैव कैलकुलेटेड द मीन, बट वी वांट टू हैव some idea of how far are the individual values from the mean, right? So इसके लिए एक statistical calculation हम करते हैं, and we call it as standard deviation, right? Standard deviation निकालते कैसे हैं? Let's discuss that. So हमें पता है the mean is the x bar, right? mean के बाद mean हमारे पास x bar है. Let's say the points are xi, where I is equal to 1 and 1 to n, right? So x1 x2 x2 x3 x4 and so on till xn, right? So वो हमारा let's say xi है. अगर मैं हर पॉइंट का डिस्टेंस निकालूं x से, तो वो क्या होगा? सिंपली होगा xi minus x bar, राइट. सो लेट्स से मेरे पॉइंट है 1 और मेरा मीन है 4. ठीक है. ये मेरा x बार है और ये मेरा xi है. अब कोई मुझे कहे भाई इसका इससे दूरी निकालो, तो दूरी क्या होगी? दूरी वुड बी सिंपली 4 minus 1, राइट. नहीं डिफरेंस है. तो ये जो अंदर की वैल्यू है ये है 4 minus 1, सॉरी 1 minus 4, राइट. सो 1 minus 4 is -3. Now I would take this value -3 and square it. उसका स्क्वायर करूँ, so ये आ जाएगा मेरे पास 9. ठीक है. 9 का स्क्वायर, सॉरी इस वैल्यू का स्क्वायर करके 9 आ गया. उस वैल्यू को हर एक पॉइंट के लिए निकालूंगा, राइट, क्योंकि सिग्मा है, एंड देन उस वैल्यू को n से डिवाइड कर दूंगा, व्हिच इज माय नंबर ऑफ पॉइंट्स, राइट. लेट्स से 92 पॉइंट्स थे, तो यहाँ पे 92 आ जाएगा. ठीक है. सो ये मुझे क्या देगा? और ऊपर की वैल्यूज 9 + 10 + सो ऑन, जो भी वैल्यूज हैं ये सब आ जाएंगे. ठीक है. अब ये मेरा क्या देगा? ये मेरा देगा एवरेज स्क्वायर डिस्टेंस, which as the name suggests is average square distance. उन दोनों का डिस्टेंस निकाला, xi minus x bar, उसको स्क्वायर किया और उसको जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया तो वो एवरेज हो गया. तो दिस इज जस्ट सिंपली एवरेज स्क्वायर डिस्टेंस. इसको हम वेरिएंस भी बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज वेरिएंस, राइट. एंड इसको हम सैंपल वेरिएंस इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज हमारे पास सैंपल ही है ना बस. पॉपुलेशन मीन्स ऑल दी पॉपुलेशन बेसिकली. वो तो आप कर नहीं सकते. आप सिर्फ मेजर कर सकते हो सैंपल का वेरिएंस. तो दैट्स व्हाई इसको हम सैंपल का वेरिएंस बोलते हैं. और ड्यू टू सम स्टैटिस्टिकल रीजंस बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द सैंपल, डिफरेंस उनमें होता है. तो इस फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं हम,
एंड सैंपल के लिए जो एवरेज स्क्वायर डिस्टेंस होता है वो होता है सेम थिंग, सिर्फ n में n-1 करना है, ठीक है। तो ये एवरेज स्क्वायर डिस्टेंस होता है फॉर अ सैंपल। यही फॉर्मूला यूजुअली यूज होता है एक्सेल में भी। आप जब अप्लाई करोगे स्टैंडर्ड डिविएशन तो वो सैंपल का ही निकलता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी हमारे एग्जांपल में कैसे फिट करता है। तो हमारे एग्जांपल में कैसे फिट करेगा, फॉर दैट दिस एग्जांपल दैट वी टुक 3 5 7 7 38, राइट। इन दिस द मीन वाज 12 एंड द n इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 है। सो हम वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा ऑफ xi माइनस x का स्क्वायर, सिग्मा मीनिंग सम, और xi यहाँ पे क्या है 3 है और x बार क्या है 12 है। तो xi माइनस x बार वुड बी 3 माइनस 12 इसका स्क्वायर, प्लस सिमिलरली 5 माइनस 12 का स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 12 का स्क्वायर एंड सो ऑन। और हमारा n इज 5, तो नीचे आएगा हमारा n माइनस 1 विच इज 5 माइनस 1। सो यहाँ सब करके कैलकुलेशन होके आ जाएगा 240। सो एवरेज ऑफ स्क्वायर्स is 240, right? Now, from this insight, what we infer is the variance is very large, right? Which reflects that there is wide spread in the data. Wide spread है डेटा में, ये हमारा वेरिएंस बताएगा। एक स्टेप पीछे लेते हैं, फिर देखते हैं क्यों ऐसा कह रहे हैं। द रीजन इज, ये जो डिफरेंस है, भले ही ये डिफरेंस आपका कितना भी हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क नहीं पड़ता बिकॉज स्क्वायर हो रहा है, राइट। -3 का स्क्वायर भी 9 आएगा और +3 का स्क्वायर भी 9 आएगा। फर्क पड़ता है कि इन दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू कितने दूर दूर है, राइट। लेट्स से ये वैल्यू आपका 3 ना होके 11 होता, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है 11 माइनस 12 का होल स्क्वायर विच इज 1। और ये वेरिएंस बहुत कम आता है, काफी कम आता है। अगर सारी वैल्यूज आपकी लेट से 11 13 11 13 12 ऐसे हो जाती तो आपका वेरिएंस बहुत कम आता। सो वेरिएंस कम आने का मतलब स्प्रेड कम है, स्प्रेड कम होने का मतलब कि डेटा पॉइंट्स बहुत ही पास पास हैं। जैसे कि जिस स्कूल में हमने पढ़ाई की उसका अगर मैं वेरिएंस देखूं ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हर बच्चा जो कि जितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आता है फ्रॉम होम टू स्कूल, उसका वेरिएंस अगर मैं देखूं तो स्कूल में कम आएगा, कॉलेज में ज्यादा आएगा। हो सकता है कोई बच्चा बहुत दूर से आ रहा हो, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, स्कूल में तो ऐसा नहीं होता, मैक्सिमम 5 किलोमीटर तक जाते हैं, राइट। तो उसका अगर आप वेरिएंस निकालोगे तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि स्प्रेड इन द डेटा कितना है। अगर ज्यादा वेरिएंस है तो स्प्रेड ज्यादा आएगा, कम है तो स्प्रेड कम आएगा। इज दिस क्लियर मेहुल? हाँ जी क्लियर है। अब लेट्स सी स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है। नाउ स्टैंडर्ड डिविएशन, पहली चीज तो ये हमने स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस निकाले हैं, राइट। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का अंडर रूट होगा। हाँ, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का अंडर रूट है स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरी गुड, ठीक है। सो स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे हमारे पास क्या आता है 14 आता है, और यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे थे, हमारा डेटा वाज फॉर द वेट्स। सो व्हाट वी से इज, सॉरी इट वाज वेट्स नहीं थे ना, राइट, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वाचिंग टेलीविजन थे ना, हाँ। सो नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वाचिंग टेलीविजन में हमारा मीन 12 आवर्स है एंड देन स्टैंडर्ड डिविएशन 14 है। कितना ज्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन है, मीन से भी ज्यादा है। ये इसलिए है बिकॉज ऑफ दिस 38, 38 आवर्स की वजह से। राइट। 38 जितना ज्यादा भार था उतना ही ज्यादा उसका स्क्वायर आया और उतना ही ज्यादा वेरिएंस आया, और वेरिएंस ज्यादा है तो स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है। नाउ अगर ये 38 पॉइंट ना होता, लेट्स से ये 12 भी होता, तो यहाँ पे 0 हो जाता और ये कितना हो जाता 50 50 लगभग 180/4, तो ये 5 के आसपास आता, 50 के आसपास लेट से आता, राइट। और 50 का स्क्वायर अगेन वो और कम हो जाता, 6 या 7 के बीच में आता, राइट। तो एक डेटा पॉइंट अगर आउटलायर है तो देखो स्टैंडर्ड डिविएशन पे कितना फर्क पड़ता है। नाउ वी हैव दीज टू मेजर्स,
हमारे पास सेंटर ऑफ द डेटा है विच इज मीन एंड स्प्रेड ऑफ द डेटा है विच इज स्टैंडर्ड डिविएशन। ये दो वैल्यूज होने के बाद ही मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ डेटा से। ट्रस्ट मी, most of the complicated processes in data science as well and in stats as well are based on these two measures, mean and standard deviation. When we study later about the distributions, un distributions में most of the role would be for mean, median and standard deviation. ठीक Okay. है, so ये base है, ये जड़ है, ये बहुत strong होना चाहिए is what I would suggest, right? So इसमें कोई भी डाउट है तो do let me know में हो। ना अभी तो क्लियर है सर, इसके एग्जांपल्स कर लूंगा मैं बीच में, जो गैप होता है वीकली। हाँ आपने वो हाँ हाँ, वेबसाइट बताई है ना, उसमें उसमें एग्जांपल्स होते हैं। राइट राइट, उसमें एग्जांपल्स भी हैं, राइट। थोड़े थोड़े हम करेंगे कवर जितना भी हो पाएगा इस सेशन में, ठीक है। ओके। अब आ जाते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पे, मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। सो मीन को आई कॉल इट एज एक्स बार एंड अभी इन्होंने स्टैंडर्ड डिवीजन को एस बोला है, बट एस डी भी बोल सकते हैं उसको, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोल देते हैं उसको। स्टैटिस्टिकल टर्म्स में सिग्मा होता है एक, जिसका सिंबल है राइट इस तरीके से सिग्मा, और इसको स्टैटिस्टिकल टर्म्स में म्यू बोल देते हैं विच इज इस तरीके का सिंबल होता है उसका, यू यू है और इसमें यहाँ पे एक वो है। सो ये सब आई थिंक फ्रेंच सिंबल्स हैं या फिर पर्शियन ऐसी कोई सिंबल्स हैं, ठीक है। म्यू और सिग्मा भी बोल सकते हैं। नाउ दे आर हाँ वेरी जी। गुड फॉर समराइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हिस्टोग्राम्स ऑफ द डेटा विदाउट आउटलायर्स, राइट। अगर हमारी डेटा में आउटलायर है तो वो हमें पहली बात तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन से पता चल जाएगा। सेकेंड थिंग इज, अगर हमें म्यू और सिग्मा को यूज करके रिप्रेजेंट करना है डेटा, सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज वेरी गुड फॉर दी सिमेट्रिकल हिस्टोग्राम्स जिनमें आउटलायर्स है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे है, राइट, ये डिस्ट्रीब्यूशन है किसी एक XYZ डेटा का, ठीक है, जिसमें लेट्स से सबसे ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी है, फिर कम 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 हो रही है, ये भी कम हो रही है, राइट। ये डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास, कोई एक आइडियल डेटा सेट है मेरे पास जिसका ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही सिमेट्रिकल दिख रहा है, ये मुझे पीछे भी उतना ही दिख रहा है, आगे भी उतना ही दिख रहा है। नाउ ये जो छोटे छोटे जीव हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन याद रखने लायक है, वो हम आगे देखेंगे क्यों ऐसा ये कह रहे हैं, ठीक है। इस डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज है, राइट। नाउ दे आर सेइंग दैट फॉर अ वेरी सिमेट्रिक माउंट शेप्ड डेटा, माउंट माउंट मतलब ऊंचाई, सो जो पहाड़ी होती है उसकी शेप दिख रही है यहाँ पे, राइट। अगर ऐसी शेप देखोगे आप तो ये माउंट की शेप है, इसीलिए इसको माउंट शेप ट्रायंगल। डेटा बोलते हैं, हाँ ट्रायंगुलर। तो ऐसा लग रहा है ना जैसे पहाड़ हो, यहाँ पे चढ़ रहे हैं, ये चोटी है और फिर उतर रहे हैं, तो इसलिए इसको माउंट शेप डेटा बोलते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे व्हाट थंब रूल इज, approximately 68% of the data is within one standard deviation of the mean. When they say it, what do they mean? That mean मेरा यहाँ पे होगा, लेट्स से इस डेटा का मीन यहाँ पे है और इसको कुछ भी वैल्यू मान लेते हैं, मान लो ये वैल्यू है 10, नहीं 100, ठीक है। लेट्स से इस डेटा के लिए मेरा मीन है 100 और मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन है लेट्स से 10, ठीक है। तो व्हाट दे आर सेइंग इज कि 68% ऑफ द डेटा विद इन वन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मीन हो जाता है। मतलब अगर मैं मीन से 10 स्टैंडर्ड डिविएशन आगे चलूंगा, 10 स्टैंडर्ड डिविएशन आगे का मतलब हो गया 110, राइट, 100 प्लस 10, हाँ और जी। सॉरी नॉट 10 स्टैंडर्ड डिविएशन, एक स्टैंडर्ड डिविएशन आगे चल गया मैं जो कि 110 आ गया, एक स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे चल गया मैं जो कि 90 आ गया। तो ये कह रहे हैं कि 90 से 100 के बीच में द थंब रूल इज, अगर सिमेट्रिक डेटा है तो 68% ऑफ द डेटा इसके अंदर अंदर है। आपको सिर्फ दो मेजर्स पता थे, आपको सिर्फ मीन पता था 100 और आपको स्टैंडर्ड डिविएशन पता था 10। अब आपने देखो इससे क्या इनसाइट निकाल लिया, बिकॉज आपको पहले से ही एक थंब रूल पता है 68% वाला, तो आपने इनसाइट क्या निकाला कि इस क्लास के बच्चों का
लगभग 68% बच्चों का वजन 90 से 100 के बीच में है. This is what you can say as a statistician, as a data scientist. Next is, अगर मैं और ज्यादा बढ़ जाऊं, अगर मैं let's say अगर मैं let's say दो बढ़ जाता हूँ, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ जाता हूँ, which is 120 पे आ गया, तो 2 इधर बढ़ गया और 2 इधर बढ़ गया, which is let's say 80. तो द थंब रूल इज, अगर सिमेट्रिक डेटा है, नोट दिस, सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है. यूजुअली आउटलायर्स होते हैं, आउटलायर्स बहुत कम होने चाहिए. तो अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज मैं करता हूं तो 80 to 100 के बीच में आई विल हैव 95% ऑफ द डेटा. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इनसाइट. सिग्मा म्यू प्लस 2 सिग्मा और म्यू माइनस 2 सिग्मा में I will have 95% of the data for a symmetric shaped data set. ठीक है. सेम इनसाइट इन्होंने यहाँ पे दी हुई है. एम्पिरिकल रूल क्या कहता है? एम्पिरिकल रूल ये कहता है कि 64% ऑफ द डेटा, जो इनका एग्जांपल था उसमें इन्होंने वेट्स एडजस्ट किए हुए हैं, एंड देन 97% ऑफ द डेटा वुड बी विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस. ठीक है. ठीक है. सो ये एक एम्पिरिकल रूल है विच इज गुड टू नो. एक और चीज हम कवर करते हैं आज, विच इज Z स्कोर. तो Z स्कोर सुनने में लगता है थोड़ा खतरनाक सा, बट खतरनाक नहीं है. Z स्कोर इज वेरी सिंपल. xi minus x bar upon mu, right? So अगर आप इसकी डेफिनेशन भी देखोगे, so we want to know that how many standard deviations or data point is away from the mean, right? And to measure that, we define the Z scores. For each I, Z score will be xi minus x bar upon 5. ठीक है. Now a Z score usually it can be positive as well, it can be negative as well, depending on कि numerator negative है positive है, denominator तो same ही रहेगा, right? Now a Z score of 2, it would mean that the observation is 2 standard deviations above the mean. ठीक है. Moreover, for the weight data that we had, इसमें the mean is 145 and the standard deviation is 23, right? If we plot the data somewhere here, so let's pick a point 175. Okay, 175 का Z score क्या होगा? 175 minus 145. 145 is the mean divided by standard deviation. Standard deviation is 23.7. So इसका Z score would be 1.26. तो मामा ये यही तो हो गया, वैल्यूज एलिमेंट माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. हाँ, राइट, वही है. Z score की डेफिनेशन वही है. Now tell me one thing, Mehul, what is the Z score of the middle value? Let's say 145 का Z score अगर मुझे निकालना है तो कितना आएगा? 145 तो 145 नहीं 145.2 का Z score क्या आएगा? 0 divided by 27.3, 0 ही आएगा. 0 आएगा, राइट? सो दैट मीन्स कि हमारे मीन का Z score इज ऑलवेज 0, क्योंकि अगर आप इसमें मीन रखोगे, राइट, मीन रखोगे तो न्यूमरेटर 0 तो Z score 0. सो मीन का Z score हमेशा 0 होता है. मोरओवर जो बाकियों का Z score है वो हम निकाल सकते हैं. एंड देन जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उनका Z score उतना ही ज्यादा होगा जितने बड़े वो आउटलायर है. ठीक है. सो फर्दर जब आप इस पे थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे Z score पे, तो यू विल गेट टू नो कि कितना इंपॉर्टेंट है Z score. ठीक है. दिस आई एक्सप्लेन द मेथोडोलॉजी ऑफ कैलकुलेटिंग द Z score. Now we will cover some questions. We still have half an hour, right? Let's try to cover them. Okay. ये हमारे पास, so Mehul, I would also want you to answer these questions. सैंपल ए है हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50. सैंपल बी है 10, 20, 30, 40, 100. नाउ
what is the center of the data for both of these? Let's say पहले start करते हैं mean से. What will be the mean for sample A? Calculate करके बताना. सैंपल ए का 30 आया। सैंपल ए का कितना है? 30। 30. ओके. सैंपल बी का? सैंपल बी का आया 50, 50, 200, 200 डिवाइडेड बाय 40 आया 40। 40. सॉरी, सैंपल बी का कम है मीन. कम कैसे आएगा यार? कम नहीं आया। सैंपल ए का 30 है, सैंपल बी का 40 है। सॉरी, सैंपल बी का कितना है? आवाज नहीं आई ठीक से. 40 40। 40. ठीक है, तो इसका 30 है और इसका 40 है. ठीक है. अगर हम इसके मीडियन की बात करें तो कितना है सैंपल ए का? यहाँ 40 है, सैंपल ए का। सॉरी मैं आई लॉस्ट यू. हेलो. मामा हो नेटवर्क गया. इशू हो गया था, नेटवर्क इशू हो गया था। सैंपल ए का हाँ. मीडियम 30 है और सैंपल बी का भी मीडियम 30 ही है। हाँ. राइट. सो यही हमने पढ़ा था, राइट, कि बिकॉज हमारी जो वैल्यू चेंज हुई है वो सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यू चेंज हुई है. तो मीडियन रेजिस्टेंट है, एक्सट्रीम वैल्यू कुछ भी होती रहे, मीडियन वही रहे. तो मीडियन 30 है एंड मीन हमारे पास दोनों के अलग है. राइट. सॉरी ये थोड़ा सही नहीं है. राइट, मीडियन और मीन उल्टे उल्टे हो गए हैं. सैंपल बी का हियर इट शुड से मीडियन. लेट मी मॉडिफाई दिस. Sample A has a median of 30. Sample B has a median of 30 30। and mean of 25. मामा 25 नहीं होगा इसका। Uh, अच्छा. हाँ, 25 तो नहीं होगा. पॉजिटिव आ रहा Mean था would be इसका। 30. Mean would be 30. 30 और ए का था और सेकंड का 40 था। mean ये 40 तो होगा इसका. Are you sure? हाँ, ये 200 हो गया ना, Hmm. टोटल करेंगे बस तो। Good. Very good. Now इसमें हमने क्या देखा कि मीन मीडियन दोनों चाहिए हमें डेटा का आइडिया लेने के लिए. ठीक है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. अब हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, ये सैंपल है, सैंपल बी में मीडियन तो सेम है बट मीन सैंपल बी का ज्यादा है. इसका क्या मतलब होगा? अगर मेरे पास सैंपल ए सैंपल बी नहीं होता, मैं नहीं देख सकता अगर इनको. अगर मेरे पास सिर्फ दोनों के मीडियन और मीन होते तो मैं क्या कहता कि सैंपल बी में कुछ ऐसा है जो उसका मीडियन तो नहीं खींच पाया बट मीडियन उसका खींच लिया. सो आउटलायर हो गया सैंपल, 100। हाँ, सैंपल बी में कुछ आउटलायर्स हैं या लेट्स से हाई वैल्यूज है. एक और एग्जांपल लेते हैं, स्प्रेड का लेते हैं एग्जांपल. सैंपल सी और सैंपल डी, ये मैं कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोलूंगा बिकॉज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है उसकी. बट लेट्स से हमारे पास सैंपल डी ऐसा है, सैंपल सी ऐसा है, सैंपल डी ऐसा है. ठीक है. गिव मी अ मिनट, आई थिंक एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास. एनीवेज, सो अगर हम देखें तो सैंपल सी का रेंज इज मैक्स माइनस मिन विच इज 900. सैंपल डी का भी रेंज 900 है. आई क्यू आर क्या है? आई क्यू आर फॉर सैंपल सी इज Q3 minus Q1 विच इज, सो अगर आप एक्सेल से फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे तो क्वार्टाइल इसमें आइडेंटिफाई करेगा इनके बीच में, राइट. देन आई क्यू आर वुड बी 830 एंड देन आई थिंक ये ना रिवर्स्ड है थोड़ा. ये एक्सेल ढूंढना पड़ेगा मुझे. लेट मी फाइंड द एक्सेल समवेयर. गिव मी अ मिनट.
So if you go to the link, जो कि हमारे मीटिंग लिंक है, उसमें है क्या, उसमें होना चाहिए। ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वाला मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, इस वाले में बेसिकली हमें देखना क्या है कि रेंज, IQR और स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल के भी हम डेटा के बारे में कितना कुछ जान सकते हैं। सेम रेंज होने के बावजूद भी डेटा में डिफरेंस हो सकता है, विच वी कैन टेल फ्रॉम द IQR एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, इसके बाद वाला उठाते हैं, राइट, दिस इज इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पे वी आर सेइंग व्हाट इज द Z स्कोर फॉर द बिलो सैंपल्स। अब Z स्कोर का कैलकुलेशन अगेन मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन इंक्लूड करता है, तो आई वोंट आस्क यू टू डू इट। ठीक है, बट दिस इज अ होमवर्क टू। ओके। ठीक है, मैं पहले इन सबका Z स्कोर निकालना है और फिर इनसे इनसाइट्स बताने हैं Z स्कोर से कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम इट। ठीक है। ये हम जब नेक्स्ट सेशन कवर करेंगे तो उसमें वी विल टेक दिस अप, क्या इनसाइट्स रहे और हम उनसे क्या इन्फर कर सकते हैं। ओके। ठीक है, अगेन आई वुड लाइक टू थैंक लैरी गोनिक। द कार्टून गाइड टू स्टैट्स एक बुक है जो उन्होंने लिखी है, आई हैव टेकन द रेफरेंसेस फ्रॉम दैट बुक। मोreover, this session is completed right now. Do you have any questions, Mehul? नहीं मामा, इसको सब क्लियर था, अच्छा था। Okay, ठीक है। थैंक यू। So yeah, thanks Mehul for joining. And so जो last हमारा suggestion था, right,